Yesterday we completed premium entries, share premium, security premium, वो हमने खत्म कर दिया. Go on to page number 59. Today a new variety of sum we are supposed to do. A new variety of sum we are supposed to do, and I warn you the solution what is given in the book उससे थोड़ा different मैं solution करूँगा, because that my extra working will help you to solve the sum in a much better way. So one extra working will be done from my side, तो वो भी हमें करना है. Do you get that? Let's start reading the sum. Authorized capital of Mansoori Limited of Dahod was 7 lakh equity shares of 10 each. On 4th of July, company has issued 4,50,000 equity share at a premium of 16. The amount was called up as under. On 4th of July, 10 rupees per share, including premium of 6. Now 4th of August, 14 per share, including premium of 10. And on 4th of September, we are asking for 2 rupees per first and the subscription was closed on 6th of July 2000 as it was fully subscribed. Board of Directors allotted all the shares of the share application. Abdul, who was holding how many shares? 600 shares, did not pay the money due on allotment and the first and final call, whereas Harun, holding how many shares? 400 shares, did not pay the first and. Except this, all the sums were received on the following dates. देखो allotment का पैसा मुझे कब मिला? 7th of August. First and final call का पैसा कब मिला? 7th of. Pass necessary journal entry, but this is new except for cash. मतलब मुझे सारी जर्नल एंट्रीज लिखनी है, लेकिन जिसमें कैश आ रहा है, मतलब कैश का मतलब वेयर वी आर यूजिंग द वर्ड बैंक, तो वो हमें एंट्री ही नहीं लिखनी है, बल्कि उसके बाद क्या बोला उन्होंने? तुम क्या बनाओ? प्रिपेयर. वी नीड टू प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट. वी डोंट हैव टू पास द एंट्री, बट जो भी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमें क्या बनाना है? बैंक अकाउंट. लेकिन सबसे पहले हमारी जो मेन कॉमन वर्किंग थी वो कर लेंगे. चलो, ऑन एप्लीकेशन कितना पैसा आ रहा है? ऑन एप्लीकेशन क्या से फेस वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है? 6 rupees is premium, face value is 4, so total 10 rupees I am getting on the premium. On allotment, total how much I have called for? 14. उसमें premium is again 10 rupees and 4 is the face value. And on first and final call, how much is the amount? 2 rupees. Premium is nil, so total is 2. So face value 10 plus premium of 16, so total is 26. But this is how we are making table in almost all the sums, if you remember. Okay. Now you tell me how many shares have I issued? I have issued how much? 4,50,000. जबकि शेयर्स के एप्लीकेशंस कितने आए? जरा देखो, वहां पर लिखा है इट इज हाउ मेनी फुल्ली सब्सक्राइब, ऐसा कुछ लिखा है, इट इज फुल्ली सब्सक्राइब. तो कहना से आई हैव इश्यूड 4,50,000, तो एप्लीकेशन भी कितनी आई? सो किसी को भी रिजेक्ट करके रिफंड हमें नहीं करना है. यस और नो? फिर आगे अब्दुल ने देखो कुछ डिफॉल्ट करा है. अब्दुल ने, बड़ा अब्दुल ने कितने का डिफॉल्ट करा? हाउ मेनी शेयर्स? 600 शेयर्स अब्दुल ने डिफॉल्ट करा. और हारून ने कितने का डिफॉल्ट करा है? 400 शेयर्स. तो टोटल 1000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया, और 600 शेयर्स पर क्या नहीं आया है? अलॉटमेंट. ओके, 600 शेयर्स पर अपना अलॉटमेंट का पैसा आया नहीं है.
अब हमें यहां पर देखो क्या क्या चीजें बनानी है। सबसे पहले ड्रॉ अ स्मॉल बैंक अकाउंट, डेट, particulars, JF, amount, date, particulars, JF. This is credit, this is debit, a small bank account. Then main journal entries. Now beta, main journal entries means the entries which are required in the question. Date, particulars, LF, debit, credit, and the extra working what we have to do, उसके लिए हेडिंग मारो रफ जर्नल एंट्रीज। तुम जो हो बेटा रफ, टफ। बेटा ये जो रफ जर्नल एंट्रीज है दैट इज माय पार्ट ऑफ द वर्किंग। ओके, उसके तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, उसके तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने हैं। इवन इन स्कूल इफ यू डू इट यू विल नॉट गेट द मार्क्स, यू विल बी स्कोरिंग बिकॉज ऑफ दिस मेन जर्नल एंट्री एंड फॉर दिस बैंक अकाउंट, दैट्स इट। उसी के लिए तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं। और सम बहुत इजी है, सम बहुत इजी है, 2 मिनट में तो स्टार्ट करेंगे तो खत्म भी हो जाएगा। सम इज रिलेटिवली वेरी इजी। बेटा स्टार्ट करो, स्टार्ट करूं। तुम रोज बेटा आके यहाँ पर जर्नल एंट्री रिवाइज करते हो, रोज मेरे सामने बेटा मुंह की खाते हो। मैं जैसे ही पूछता हूं तुमको कुछ याद नहीं रहता, ऐसा क्यों? सर स्वैग है, टैलेंट है, हमारा टैलेंट है। बेटा रेज योर हैंड, व्हाट वुड बी माय फर्स्ट एंट्री? से क्या पूछ रहे हो? देखो है वापस साइलेंस। बेटा व्हाट वुड बी माय फर्स्ट एंट्री? सोहेल भाई फर्स्ट एंट्री। बहुत बढ़िया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस। अब यहां जरा समझो, बैंक टू एप्लीकेशन ये जो मैंने एंट्री मारी उसमें ये कैश इन्वॉल्वमेंट बैंक आया। अच्छा ये वाली एंट्री क्या सम में मारने को बोल रहे हैं वो लोग? नहीं। सो हम वो एंट्री किस में लिखेंगे? रफ में। अब देखो सारा एप्लीकेशन का कौभांड बंद हुआ है 6 तारीख को। सो 6 जुलाई विल पास द डेट। और एंट्री क्या बोली सोहेल भाई ने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सोहेल अमाउंट बेटा 45 लाख कैसे आया बेटा, समझा? क्या कह रहे हैं? 4,50,000 के एप्लीकेशन आ रहे हैं और एप्लीकेशन में मैंने टोटल कितना मंगाया है? तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, 45 लाख ही आएगा बेटा। 4,50,000 शेयर्स पर 10 रुपीज, तो that itself is 45 lakh. He is right. सर ये एंट्री लिखवा क्यों रहे हो? इधर समझो,
इस एंट्री पर से हम देखो ये बैंक अकाउंट का लेक्चर पोस्टिंग करेंगे। वहां पर बैंक क्या हुआ है जरा चेक करो, बैंक क्या हुआ है? डेबिट। सो मैं यहाँ बैंक अकाउंट में किधर लिखूं? डेबिट साइड। क्या लिखूं? लिखा जाए 6th July to equity share application 45 lakhs to equity share application 45 lakhs. Any doubt? Any doubt? Now बड़ा ध्यान से, please be attentive. Along with application, I am also asking premium, right? तो yesterday we saw कि application के साथ अगर premium आता है, तो what's my second entry? Application के साथ premium आ रहा है, तो मेरी second entry क्या बनेगी? Very good, हाँ? Equity share application to equity share capital to security premium. Very good, एंट्री बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एंट्री में कहीं बैंक आया? बैंक आया तो किधर लिखूं? मेन जर्नल एंट्री में। वेरी गुड। 6th July 6th July equity share application account debit to equity share capital to securities premium। हाँ बेटा, क्यों? 4 जुलाई को बेटा हमने एप्लीकेशन सब करे, लेकिन फिर 6 जुलाई को सारा रैप अप कर दिया ना। देख वहां पर ऐसा भी लिखा है, तो मेरे सारे पैसे कब तक आ जाएंगे? 6 जुलाई तक, इसलिए हमने 6 जुलाई की डेट मारी है। उसके बाद अलॉटमेंट का पहले ड्यू होगा, और फिर देख पेज टर्न करके पढ़ के पैसे कब आए उसकी डेट अलग दी हुई है, ऐसा। तो हमको उस हिसाब से डेट में लिखना है, ठीक है? तो अभी ये हमने अमाउंट कैसे डिटरमाइन करनी है? एप्लीकेशन क्रेडिट कितना हुआ? क्रेडिट 45 lakhs। तो इधर डेबिट कितने से करूंगा? 45 lakhs। हम डेबिट भी 45 lakhs से करेंगे। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 4,50,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 6 रुपीस 27 lakhs। बहुत बढ़िया। एंड शेयर कैपिटल में हमेशा मैंने कहा तुमको फेस वैल्यू 18 lakhs। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या से एप्लीकेशन का जो 2 सेट ऑफ एंट्री है वो हमने लिख दिया। पहला बैंक टू एप्लीकेशन वो हमने रफ में लिखा, और जो फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमने मेन में लिख दिया। सेकेंड नाउ अलॉटमेंट। अब बेटा अलॉटमेंट में भी प्रीमियम आ रहा है। सो बेटा मेरे अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बेटा रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, कल ही सीखा है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, कल सीखा है। मैजविन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, कहीं पर आया बैंक? कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? मेन जर्नल एंट्री में लिखा जाए। बहुत बढ़िया। अब देखो ड्यू हमने कब करा है? 4th August। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, अलॉटमेंट में हमने पैसे आए कितने? 4,50,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 14 रुपीस 63 lakhs। सिक्योरिटी प्रीमियम 4,50,000 पे 10 रुपया 45 lakhs।
और इसमें हमेशा फेस वैल्यू पर ही एंट्री मारने की 18 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर ही एंट्री आएगी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा ये है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। 4 अगस्त को अलॉटमेंट मैंने ड्यू करा, 7 अगस्त को देखो सारे शेयर होल्डर ने अपने को पैसे भिजवाए, 7 अगस्त सब में डेट दिया हुआ है, लेकिन सब में से अब्दुल ने 600 शेयर पर पैसे, अब्दुल ने 600 शेयर पर पैसे, बेटा रेज योर हैंड, इसकी एंट्री क्या आएगी? आनी चाहिए सबको, सबको। कृषित बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरे अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। बेटा कॉल्स इन अरियर में क्यों जाएगा? क्योंकि अब्दुल को जो पैसे देने थे उसने वो दिए। टू 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 बेटा रफ में के मेन में, रफ में के मेन में भाई रफ या लिखा जाए 7 अगस्त 7 अगस्त बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears debit to equity share allotment। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share allotment। अब बेटा मैंने अलॉटमेंट यहाँ डेबिट कितने से करा? 63 लाख। सो हम क्रेडिट भी यहाँ पर कितने से करेंगे? 63 लाख। अब बेटा टेल मी अब्दुल ने कितने का डिफॉल्ट करा? 600 शेयर पर, 600 शेयर पर 14 रुपीज 8400। सो बेटा बैंक में कितना पैसा गया? बैंक में 6291,600। It is 6291,600। जब बेटा बैंक के हमने वो डेबिट साइड लिखा है तो उसके अकाउंट की लेजर पोस्टिंग होगी, होगी या 7 अगस्त टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6291,600 बड़ा 6291,600 But now the most important part of the question begins. The most important part. अब मैंने क्या करा है तुमको जरा ध्यान दो। मैंने क्या किया है यहाँ पर, हम ये जो बैंक वाली एंट्री लिख रहे हैं ना, बैंक वाली एंट्री, वो मैंने 2 एंट्री को तुमको मर्ज करके एक एंट्री बना के तुमको बताई है। मतलब ये जो हमने एंट्री लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर, वो एक्चुअली है कितनी एंट्री? 2 एंट्री। और वो 2 एंट्री को मैंने मर्ज करी और कितनी एंट्री बनाई है? 1 एंट्री। अब इस एंट्री को अगर मैं डीमर्ज करूं, मतलब एंट्री को अगर हम जो कंबाइन कर रहे हैं उन दोनों को अगर अलग अलग देखें तो अलग अलग एंट्री है क्या? जरा समझो, अलग अलग एंट्री है क्या? बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर डेबिट टू, ऐसी एंट्री है। व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, और इसलिए हमने इनको मर्ज कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अगर हम इन दोनों एंट्री को अलग अलग कर दें तो एक एंट्री क्या है? बैंक टू, और दूसरा क्या है? कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या बैंक वर्ड आया? तो वो ये मेन एंट्री में भी आएगा अपनी 7 अगस्त। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
8,400. Calls in arrears account debit to equity share allotment 8,400. बेटा ये एंट्री भी अपनी मेन एंट्री के साथ हमको लिखनी है, और वो दो एंट्री अलग जो हुई वो पता चली, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। तो कॉल्स इन अरियर वाला हमने मेन में लिख दिया, ठीक है। अब बेटा जरा मुझे बताओ नेक्स्ट एंट्री किसकी आएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो मैंने उसको पहले ड्यू करना है, 4 सितंबर इज द ड्यू डेट, जरा चेक करो बेटा। 4 सितंबर इज द ड्यू डेट। सो बेटा ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी? बेटा ड्यू करने की एंट्री, अरे बोलो क्या कर रहे हो, बोलो ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू, लिखा जाए तारीख 4 सितंबर। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 4,50,000 शेयर पर हमको 2 रुपया मिल रहा है। So that comes to how much? 9 lakh. That comes to 9 lakhs. But better tell me one thing. Did all the shareholders gave us the money? No. How many of you didn't give? 1000 shares पर अपने को पैसा नहीं मिला। 1000 शेयर पर अपने को पैसा, तो बेटा रेज योर हैंड। हम एंट्री क्या मारेंगे अलॉटमेंट के बाद? ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री क्या आएगी? ब्रोदिन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर। सो पहले हम उसको रफ में लिखते हैं। 9th September bank account debit, calls in arrears debit to equity share first and final call। Bank account debit, calls in arrears account debit to equity share first and final call। अब बेटा मैंने डेबिट करा 9 लाख से, तो क्रेडिट भी होगा कितने से? 9 लाख से। डेबिट हुआ है 9 लाख, तो क्रेडिट भी होगा 9 लाख से। ना कितने शेयर पर पैसे नहीं आए? 1000 शेयर पर 2 रुपया नहीं आया है, तो कॉल्स इन अरियर्स में इट विल बी 2000। एंड बेटा बैंक में कितना जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, बैंक में जाएगा 8,98,000। सो बेटा वहां से हम ये बैंक की लेजर पोस्टिंग करेंगे। 9th September टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8,98,000। And can I say from that rough entry something will come in the main entry also? Yeah, very good. लिखा जाए बेटा 9th September calls in arrears to equity share final call and the amount is 2000। અને પછી ડેબિટ ક્રેડિટ નું ટોટલ કરીને પતાઈ દેજો જર્નલ એન્ટ્રી। we have to also close our bank account। so बेटा बैंक अकाउंट में मुझे बताओ डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1 कितना आ रहा है? 1 करोड़ 16 लाख 89
1,16,89,600. 1,16,89,600. So this will be 116,89600. यही हम लिख देंगे as our closing balance 31st March. यही हम लिख देंगे अपना closing balance as on 31st March. But if I give you one similar sum which is an illustration, but in that illustration they have not done this rough journal entries, they have just drew bank account and main journal entries, they have not done rough. तो तुम्हें rough भी बनाना है और वो sum अभी करना है. That's the sum we are supposed to do it today, and then from tomorrow I'll start with a new topic, forfeiture of shares. It's very easy. Illustration 8, you are supposed to do it right now. Come on, start illustration 8. Make all this 3 format, okay? Start. Vincent, band kar rahe.